हाथियों के हमले का शिकार होने से चाय बागान के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और उनका परिवार बच गया। जयगांव थाना के अंतर्गत हांसीमारा आउटपोस्ट थाना के अधीन बीच टी गार्डन में गत रात हाथियों के उत्पात से सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और उनका परिवार बच गया। डुअर्स के चाय बागान क्षेत्र से आए दिन हाथियों के द्वारा चाय श्रमिकों के मकान को तोड़कर नुकसान पहुंचाने का मामला तो प्रकाश में आता रहता है, मगर गत रात करीब 12 हाथियों का झुंड के द्वारा चाय बागान के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के बंगलों में घुस उसे तोड़कर जमकर उत्पात मचाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में किसी तरह बंगलों से भाग सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और उनका परिवार जान बचा पाने में सफल रहे। बीच टी गार्डन के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर अंजन बदूरी ने बताया कि गत रात 12 बजे के करीब जब हम सभी सो रहे थे तभी अचानक घर हिलने लगा। तब हम बाहर झांक कर देखे तो बाहर हाथियों के द्वारा घर का गेट, दीवार आदि तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान उन्होंने देखा कि गेट को तोड़ 2 हाथी मकान के भीतर घुस आए। इधर मकान के भीतर हाथी के घुस आने के बाद वह और उनका परिवार पीछे के रास्ते से बाहर निकले और देखा कि बाहर हाथियों के झुंड जिसमें 12 करीब 10 हाथी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह अपने प्राण बचाकर वे लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने कभी भी हाथी को इस तरह कमरे में घुस तांडव करते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि गनीमत था कि इस घटना में वह और उनका परिवार बच गया। उन्होंने कहा कि बाद में प्रबंध के सहयोग से वहां पहुंचे और हाथियों के झुंड को बम पटाखे फोड़कर वहां से वापस जंगल में भेजे जाने में सफल रहे। इधर चाय बागान के सिक्योरिटी इंचार्ज राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि गत रात हाथियों का झुंड यहां बंगलों में घुस आया था। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर बम पटाखा फोड़कर किसी तरह हाथियों को जंगल में भेजा और उसमें सफल रहे। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर वन विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम वन विभाग को इस तरह का मामला आगे न हो, इसको लेकर कार्य करने का आवेदन कर रहे हैं। 12টার দিকে আমার হঠাৎ মনে হলো বাইরে আওয়াজ হচ্ছে। আমি জানলা দিয়ে দেখলাম যে লনে একটা প্রথমে, তারপরে আস্তে আস্তে দেখলাম দুটো, এই করতে করতে টোটাল 12টা হাতি আমি দেখলাম লনে ঘুরছে। এই রাত্রি 12টার দিকে লনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার বারান্দাতে উঠে আসলো। বারান্দাতে উঠে আমার ড্রয়িং রুম, আমার ডাইনিং রুম, আমার পূজা রুম সব ভেঙে চুরমার করলো। চুরমার করে 3টে হাতি বাংলোর মধ্যে মোটামুটি 2 ঘন্টা ভিতরে বসে থাকলো। বসে থেকে তারপরে আমরা বেরিয়ে গেলাম। মানে তখন না বেরোলে হয়তো মরেই যেতাম। বেরিয়ে গিয়ে আবার ওখান থেকে আমাদের যত কলিগরা আছে, আমাদের যত চৌকিদার ডিপার্টমেন্ট আছে, ওদের সবার সাথে আমার বড় সাহেব ছিলেন রাত্রে, আর বাকি কলিগরাও ছিলেন। সবাই মিলে একটা ট্রাক্টর নিয়ে এসে বোম ফাটাতে ফাটাতে আসলাম। যখন আমরা বোম ফাটাতে ফাটাতে বাংলোতে ঢুকলাম, আবার সেই সময় 2টো হাতি, একটা হাতি বাইরেই ছিল, 2টো হাতি ভেতরেই ছিল তখনও, তো তারা বেরিয়ে চলে গেল। এই হচ্ছে পজিশনটা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমরা তাড়িয়ে দেওয়ার পরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসেছিল। ওদের তো একটু টাইম লাগেই হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে। এই ধরনের ঘটনা তো ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এটাই প্রথম আমার 23 বছরের চাকরি জীবনে এবং আমার জন্মও বাগানে আমি কোনোদিনও এরকম ফেস করিনি। তো আপনারা হাতি যখন দেখলেন, আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করলেন? না, রক্ষা করার কিছু নেই, দেখতে পাচ্ছি হাতি সামনে, রক্ষা করবো কীভাবে হাতি? না মানে কীভাবে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলেন আর কি? বাড়ির থেকে বেরোলাম মানে হাতি যখন, আর প্রথমে অনেকটা সময় বাংলোতে ছিলাম, তারপরে যখন দেখলাম যে আমার বেডরুমে ঢুকতে যাচ্ছে, তখন আমরা পেছনে বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মানে অলমোস্ট দৌড়েই আমরা অন্য বাংলোতে চলে গেছি। বাড়িতে কে কে আছেন স্যার? আমি আর আমার মিসেস, দুজনেই। এবং আমরা যখন দৌড়ালাম তখন আমরা জানি না যে আমাদের আশেপাশে কোথাও হাতি দাঁড়িয়ে আছে কিনা অন্ধকারে, জাস্ট প্রাণ ভয়ে দৌড়ানো হয়। আমাদের বড় সাহেব ওই রাত্রেও অনেক আমাদেরকে হেল্প করলেন, অনেক এসেছিলেন উনি নিজেই। বন দপ্তরের কাছে কি আবেদন রাখলেন স্যার? আবেদন আর কি, উনি দেখে গেলেন, বললাম এটা ড্যামারেজের আবেদন তো করবই, প্লাস আগামীতে যাতে এরকম না হয় তার ব্যবস্থা ওনারা করুন। আপনার শুভ নাম স্যার? অঞ্জন ভাদুরী।
सर अंजन भादुरी। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए, आज तक ये हमारा बगान में ग्रामीण क्षेत्र में अब या चाय बागान में आए दिन तांडव चलता ही रहता है हाथी का। और ये हमारा ये 14 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, इसका और दलसिंहपड़ा का बॉर्डर लाइन में ये इसका मैंने कॉरिडोर है वो आने जाने का। तुरसा से जाता है, बासरा की ओर चला जाता है, उधर से आता है और डेली आना जाना चलता ही रहता है। और आए दिन गांव में तो तांडव चलता रहा। ये हम देखा है बंगला में ये था, वो भी इतना उग्र हाथी का जो उग्र रूप हम भी आए थे। और बेंगलोर का भीतर, दरवाज़ा का भीतर बेडरूम तक वो हाथी पहुंच गया। मैंने ये तो सोचने के लिए बात है। लोहा का दरवाज़ा था उसको भी तोड़ के अंदर चला गया। तो ये तो अभी प्रशासन से जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है उसके लिए हम लोग का एक सुरक्षा का कोई बेड़ा बना देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आए दिन हमारा ये तांडव तो ऐसा चलता रहेगा। हमारा बगान क्षतिग्रस्त करता है और जितना क्षति नुकसान करता था तो उसका क्षति का भुगतान तो हमारा मजदूर को भी पड़ता है। इसीलिए मैं प्रशासन से वन विभाग से मैं अनुरोध दरखास्त जनाता हूँ कि वो इसकी और जो एकदम कड़ी दृष्टि दें और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें। आपका शुभ नाम? राजेश विश्वकर्मा, मैं गार्डन का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ।